Hello dear students, my name is Lakhi Ahuja and I am your EVS teacher for class 4th. In class 4th EVS, today we are starting a new chapter, chapter number 17, and this chapter is named as Fairs in Rajasthan. Fairs are an important event for you children, and today we are going to discuss about many fairs which are held in our state Rajasthan. तो बच्चों कक्षा 4 के EVS में हम आज हमारा एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जो कि है अध्याय 17 और ये जो अध्याय है इसमें हम बात करने वाले हैं राजस्थान में मेलों की। तो राजस्थान राज्य में कई सारे मेलों का आयोजन किया जाता है और ये सभी मेले काफ़ी खास हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर। सी there are many ways for entertainment. We get entertainment from fairs and bazaars also. Yes, this is true that there are different methods of entertainment and we get entertainment from fairs and bazaars also. तो बच्चों आप जानते हैं कि मनोरंजन के कई अलग अलग तरीके होते हैं और मनोरंजन हम सभी को पसंद है और ये जो मेले और बाज़ार लगते हैं इनसे भी हमें काफ़ी मनोरंजन प्राप्त होता है. Now fairs and haat bazaars are held on different occasions at many places. So this is quite clear that different fairs and haat bazaars are held at different places on different occasions. तो बच्चों हमारे राज्य में खासकर अलग अलग मौक़ों पर अलग अलग जगहों पर कई अलग अलग प्रकार के मेले और हाट बाज़ारों का आयोजन किया जाता है. Now see, some fairs are religious, some are for business, and at some places animal fairs are held, and you also must be going to some fairs. So it is quite clear that there are different kind of fairs. So some fairs are religious fairs, some are for business purposes, and there are some fairs which are called animal fairs, and you must have visited any of them. तो बच्चों आप जानते हैं कि अलग अलग प्रकार के मेले होते हैं. कुछ मेले होते हैं जो कि धार्मिक होते हैं, कुछ मेले होते हैं जो कि व्यापार के उद्देश्य से लगाए जाते हैं और कुछ मेले पशु मेले भी कहलाते हैं और आप इनमें से किसी न किसी प्रकार के मेले में गए होंगे और अगर नहीं गए हैं तो आपको अवश्य जाना चाहिए. एंड हियर इज द पिक्चर ऑफ अ फेयर इन डेजर्ट एरिया ऑफ राजस्थान. आप यहाँ चित्र देख रहे हैं जो हमारे राजस्थान का मरुस्थलीय भाग है, वहाँ भी कई मेले आयोजित किए जाते हैं, उन्हीं की ये एक चित्र है. नाउ सी, there are some questions you have to think and tell about them. You simply have to discuss it with your friends and elders. So first question is, which fairs have you seen? So have you seen any fair, and if you have seen, which are those fairs? तो बच्चों आपने क्या कभी कोई मेला देखा है और अगर आपने देखा है तो आप पता कीजिए अपने घर वालों से, अपने माता पिता से कि हाँ मैं जो मेले में गया था वो मेला कौन सा मेला था. Now second question is, with whom did you go to the fair? So if you went to the fair, with whom did you go there? तो बच्चों आपको दूसरी बात ये डिस्कस करनी है अपने माता पिता से कि आप किसके साथ गए थे. हो सकता है आप दादा दादी के साथ गए थे, हो सकता है आप अपने पास के अंकल के साथ गए थे, आप नाना नानी के साथ गए थे. सो सिंपली यू हैव टू डिस्कस दिस थिंग ऑल्सो. देन द थर्ड क्वेश्चन, why do you feel joyful at fairs? So here is a question which is very interesting, that why do you feel joyful at any of the fair? तो किसी भी मेले में जब आप जाते हैं तो आप इतना आनंदित, इतना खुश क्यों महसूस करते हैं. Now we are going to talk about specifically the fairs of Rajasthan. तो अब हम राजस्थान के मेलों की कुछ खास बातें करने वाले हैं. So fairs have a great significance in the culture of Rajasthan. So in our culture, in our state's culture, fairs are having very specific significance. आपको ध्यान रखना है बच्चों कि हमारे राज्य राजस्थान की संस्कृति में मेलों का एक खास महत्व है. Many fairs are held here. Baneshwar Fair in South Rajasthan,
Fooldole Fair in Shahpura, Urs in Ajmer, Ramdevra Fair in Jaisalmer, and Nag Panchami Fair of Jodhpur. So these are some of the examples of fairs. So in our state Rajasthan, different fairs are held, and some of the important or the most important fairs are the Baneshwar Fair of southern Rajasthan. After that, the Fooldole Fair of Shahpura. Then there is Urs Fair of Ajmer. After that, the Ramdevra Fair of Jaisalmer and the Nag Panchami Fair of जोधपुर। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि कई सारे मेलों का आयोजन हमारे राज्य में किया जाता है और कुछ नाम यहाँ पर हमने रखे हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध मेले हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि बेणेश्वर का मेला जो कि दक्षिण राजस्थान में लगता है, बहुत प्रसिद्ध है। और इसी प्रकार से फूलडोल मेला जो कि शाहपुरा नाम की जगह पर लगता है। उसके अलावा उर्स का मेला जो अजमेर ज़िले में लगता है। फिर हम बात करते हैं रामदेवरा मेले की जो कि लगता है जैसलमेर ज़िले में। और फिर आता है नागपंचमी मेला जो कि जोधपुर में लगाया जाता है। आफ्टर दैट there are some more fair like Tees Fair of Jaipur, Udaipur's Haryali Amavasya Fair, then Dashhara Fair of Kota, Pandupol and Bharthari Fair of Alwar, and Animal Fair of Pushkar and Nagaur are very famous. So see the names, there are many names of famous fairs. So there are some more like the Tees Fair of Jaipur is also very famous. Then Udaipur's Haryali Amavasya Fair is also famous. Dashera Fair of Kota, then Pandupol and Bhartari Fair of Alwar, then Animal Fair of Pushkar and Nagaur are also वेरी फेमस। तो बच्चों ध्यान रखना है कि बहुत सारे मेले हमारे राज्य के प्रसिद्ध हैं। बड़ी दूर दूर से पर्यटक आते हैं इन मेलों को देखने। तो कुछ मेले हमने देखे, उनके अलावा जयपुर का तीज का मेला, उसके बाद जो हरियाली अमावस्या का मेला उदयपुर में लगता है वो, उसके अलावा कोटा का दशहरा मेला, उसके बाद पांडुपोल और भरतरी का मेला जो अलवर में लगता है वो भी बहुत प्रसिद्ध है। और फिर हम बात करते हैं पशु मेले जो कि लगते हैं नागौर में और पुष्कर में। ये सभी मेले हमारे राज्य के हैं और ये सभी मेले जो हैं वो काफ़ी प्रसिद्ध हैं। नाउ सी there are some question again you have to watch and tell or you have to discuss with your parents. So first question is which fairs are held in your area and at which place? So this is quite important. You have to observe near your area and you have to find out that which fairs are held in your area. तो बच्चों आप जहाँ रहते हैं, जिस भी ज़िले में जिस भी जगह आप रहते हैं, तो आपके आसपास कौन से मेलों का आयोजन किया जाता है और अगर किया जाता है तो विशेषकर किस जगह पर, जैसे आपके ज़िले में किस जगह पर मेले का आयोजन किया जाता है, ये आपको पता लगाना है। कैसे पता लगाएंगे? आप अपने बड़ों से बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे और वो आपको बताएंगे कि आपके क्षेत्र में कौन कौन से मेले लगते हैं। Then the second question is on what dates are these fair held? Make a list. So you have to make a list about it on which date these fairs are held. तो ये जो मेले आप पता करेंगे आपके क्षेत्र में लगते हैं, ये किन तारीखों को लगते हैं ये भी आप पता करेंगे और फिर आपको एक लिस्ट तैयार करनी है। Then the third thing on which occasions are these fair held? तो ये जो सभी मेले हैं ये कौन से त्योहारों पर या उत्सवों पर आयोजित किए जाते हैं? So try to find out the things and try to discuss these things with your parents and other elders. See, now we are going to talk about some of the very famous fairs of our state. So there's a Lakhi Fair. So लखी मेला जो है वो बहुत प्रसिद्ध है। तो ये मेला कहाँ लगता है, क्या होता है, देखते हैं। See, Alwar is the worship place of ancient ruler King Bharthari. Every year here Lakhi Fair is held at Bhadrapad Shukla Ashtami, that is the 8th day of new moon in the month of अगस्त। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं लखी मेले की। ये लखी मेला कहाँ लगता है? तो अलवर ज़िले में ये लगता है और अलवर ज़िला जो है वहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा हुए, राजा भर्तहरि। ये बहुत ही प्राचीन समय के राजा थे। अलवर ज़िले में इन्हें पूजा जाता है। तो प्रत्येक साल लखी मेला लगाया जाता है।
कब लगाया जाता है? सो ऑन भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, ये मेला भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को लगाया जाता है एंड इट कैन बी सेड दैट इट इज़ ऑन द 8th डे ऑफ न्यू मून इन द मंथ ऑफ अगस्त। तो अगस्त महीने में ये 8वें दिन को लगाया जाता है और ये शुक्ल अष्टमी कही जाती है। नाउ सी, विद नाथ कम्युनिटी sages and followers to participate in this in large numbers। तो जो नाथ समुदाय हैं उसके साथ साथ कई सारे संत और कई सारे भक्त भी इस मेले में हिस्सा लेते हैं। ट्रैवलर्स मेक विशेस इन द नेम ऑफ हर्मिट भर्तहरि। तो जो भी यात्री यहाँ आते हैं वो भर्तहरि राजा या जो बड़े विद्वान संत हुए भरतपरि, उनको याद करके उनके नाम पर अपनी जो इच्छाएं हैं वो पूरा करने की मुराद यहाँ पर करते हैं। नाउ सी, खीर, पूरी, हलवा, दाल बाटी, चूरमा are prepared and offered to the sage। So you need to remember that here special kind of dishes are also made। So kheer, puri, halwa and dal bati churma, these are the dishes which are prepared and offered to the sage। तो राजा भर्तहरि या संत भर्तहरि के जो भोग लगता है उस भोग में विशेष प्रकार का भोजन बनाया जाता है। तो वहाँ खीर, पूरी, हलवा का भी भोग लगता है और दाल बाटी चूरमा का भी भोग लगाया जाता है। नाउ हियर नियर द हर्मिट्स मेमोरियल अखंड ज्योति दैट इज इटर्नल फ्लेम इज ऑलवेज लिट। तो आपको बच्चों याद रखना है कि यहाँ इस मेले में जो लक्खी मेला है इसमें जो अखंड ज्योत है भर्तहरि के नाम पर, उस अखंड ज्योत को भी वहाँ पर जलाया जाता है। नाउ सी, द नेक्स्ट फेयर हियर इज द रामदेवरा फेयर एंड दिस इज ऑल्सो वेरी फेमस फेयर इन आवर state। So Ramdevra is a famous religious place near Pokhran in Jaisalmer। So you need to remember that Ramdevra is a famous religious place near Pokhran in the district of Jaisalmer। तो बच्चों रामदेवरा जो जगह है ये प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। कहाँ पर है? पोखरण नामक जगह जो कि जैसलमेर जिले में है वहाँ पर। Here a huge fair is held twice in a year in the month of Magh and Bhadrapad। So here the fair is held twice a year and that is in the month of Magh and Bhadrapad। तो रामदेवरा में साल में 2 बार मेला भरता है। कब कब भरता है? माघ के महीने में और भाद्रपद के महीने में। एंड here you can see the temple of Ramdev ji। Now Baba Ramdevra is a folk god and both Hindus and Muslims revere him, so he is worshipped by the name of Ramsa Peer। So you need to remember that Baba Ramdevra is a folk god and he is worshipped by different religions and specifically by both Hindus and Muslims and that's why he is known by the name of Ramsa Peer। तो बच्चों याद रखेंगे कि बाबा रामदेव जो हैं वो एक लोक देवता हैं और साथ ही साथ दोनों जो मुख्य धर्म हैं यानी हिंदू और मुस्लिम ये इनको पूजते हैं, इनको बहुत ज़्यादा श्रद्धेय मानते हैं और इसी कारण से इनको रामसा पीर के नाम से भी पूजा जाता है। नाउ सी, travelers come here from long distances on foot। So different travelers come to the fair from long distances on foot। तो कई सारे यात्री यहाँ इस मेले में पैदल चलते हुए आते हैं। Along the way people make arrangements for free food, water, resting place, medicines, etc. for travelers। So this is quite important that when travelers come on the foot, different kind of arrangements are made for them like the free food, water, resting place, medicines, etc. are arranged for free for all these travelers। तो जो भी यात्री इस मेले तक पहुंचते हैं वो अक्सर पैदल यात्रा करके पहुंचते हैं और
इसी कारण से जो अन्य लोग हैं वो इन यात्रियों के लिए, जो मेले तक जाने वाले यात्री हैं, उन सब के लिए कई सारे प्रबंध करते हैं। जैसे उनके लिए बिना किसी शुल्क के भोजन उपलब्ध कराया जाता है, पानी उपलब्ध कराया जाता है, उनके आराम करने के लिए जो स्थान है वो उपलब्ध कराया जाता है, साथ के साथ दवाइयाँ भी उपलब्ध कराई जाती हैं। नाउ पीपल फ्रॉम ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया come here. So it is important that in this Ramdevra fair, people from different states of India come. तो बच्चों आपको याद रखना है कि इस रामदेवरा मेले में, जो कि जैसलमेर में भरता है, कई सारे अलग अलग लोग आते हैं और विभिन्न राज्यों से यहाँ पर दर्शनार्थी आते हैं. So students, here today we talked about two important fairs, that was Lakhi Fair and the Ramdevra Fair. We will be continuing this chapter in our next part. This is all for today. Till then, thank you for watching.